Hello students, how are you? I hope all of you are doing perfect at your places. So students, today we will be having our online sessions और online session के benefits बहुत सारे हैं. One being the prime reason, आपको घर के बाहर भी नहीं जाना और आप सारी चीज़ें अपने घर पे आराम से अपने टेबल पे बैठे हुए सब कुछ सीख सकते हो. Now before beginning the session, do you know what my name is? My name is... Right, my name is Simran. So today we will be doing something very interesting chapter of this book, and the topic of this chapter is Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is living and non-living things. So we see different kinds of things around us. Things constitute of two types of categories. One is living things, another one is non-living things, and in this chapter we will be dealing about the differences between these two things. And the learning objectives of this topic will be living and non-living things and characteristics of living and non-living thing. Get going. Circle the names of things that need food, water and air to move and grow in size. So आपके पास अलग-अलग pictures हैं, कुछ living होंगी, कुछ non-living होंगी. You have to tell कि कौन सी चीज़ों को खाने की, हवा की, पानी की, इन तीनों की ज़रूरत होती है in order for them to grow and develop. Number one is a child. And now child एक living creature है, hence इसे हवा भी चाहिए so that it can breathe, पानी भी चाहिए so that it can survive, and it needs food also ताकि grow कर सके. Second is a Barbie. Barbie is completely a non-living thing, hence इनको तीनों में से कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. Doll again is a toy, a non-living thing, इन्हें भी ज़रूरत नहीं है. Cat again is a living thing, तो हवा भी चाहिए breathe करने के लिए, पानी भी चाहिए पीने के लिए, and it needs food also to grow. Refrigerator again a non-living thing, doesn't require anything. Horse is again a living thing, hence it requires all the three things to grow and survive. Tiger is a living thing, it requires all the three things. Computer again is a non-living thing, hence it doesn't require anything. Then we have fish, a living creature, तीनों चीज़ें चाहिए सर्वाइव करने के लिए. ऑयल इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, नहीं चाहिए. बाइसिकल इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, अगेन डजंट रिक्वायर एनीथिंग. शार्क इज़ अ लिविंग क्रीचर, एक्वेटिक एनिमल है, इसे भी तीनों चीज़ें चाहिए. गन इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, डजंट रिक्वायर एनीथिंग. ज़ीब्रा, वुमन, बोथ द थिंग्स आर लिविंग बींग्स, हेंस एयर, वाटर और फूड की ज़रूरत है. एंड देन लास्ट वन इज़ अ जूसर, अ नॉन लिविंग थिंग, सो इसे भी तीनों में से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. Reading time. Have you circled the things? Child, cat, horse, tiger, fish, shark, zebra and woman. All these are called living things. So all plants and animals are living things. We are also living things. What do living things do? So ऊपर आपकी जितनी भी pictures थी उनमें से जितने भी living creatures थे, shark, fish, child, woman, टाइगर, जीब्रा, ये सारे के सारे लिविंग क्रीचर्स में है बिकॉज दे रिक्वायर एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक एंड फूड इन ऑर्डर फॉर देम टू ग्रो. ये सारे लिविंग क्रीचर्स में हैं. इवन वी ऑल ह्यूमन बींग्स ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लिविंग बींग्स. नाउ वी विल सी कि लिविंग थिंग्स ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से वो इस कैटेगरी में आते हैं. लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को खाना चाहिए, ह्यूमन बींग्स को खाना चाहिए, आपको खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, जितने एनिमल्स हैं उनको भी खाना चाहिए, तभी वो सर्वाइव कर पाते हैं. अदरवाइज बहुत लंबे टाइम के लिए खाना नहीं मिलेगा, ना ही आप कुछ कर पाओगे, एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, एंड द डे विल कम वी विल डाई इफ वी डू नॉट हैव फूड. लिविंग थिंग्स ब्रीद, सांस लेते हैं. लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन, आप खुद से मूव कर सकते हो, मैं खुद से मूव कर सकती हूँ, एनिमल्स खुद से मूव कर सकते हैं. सो ऑल द लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन, खुद से मूव कर सकते हैं. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी लिविंग थिंग इज लिविंग थिंग्स फील होता है. ठंडी फील होती है, गर्मी फील होती है, टच फील होता है, गर्म, ठंडा, कांटे, हर टाइप की चीज़ें आपको फील होती है, इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको भी फील होता है. हेंस दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स ग्रो, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं. पहले सीड होता है, सीडलिंग में कन्वर्ट होता है, फिर छोटे प्लांट में, उसके बाद वो ट्री बनता है. जो एनिमल्स होते हैं उनके ही पहले बेबी एनिमल्स होते हैं, देन दे ग्रो इनटू एडल्ट्स. ह्यूमन बींग्स का ही पहले बेबी होता है, फिर वो किड में कन्वर्ट होते हैं, फिर वो किड एक एडल्ट बॉय या फिर गर्ल में कन्वर्ट होता है, फिर वो एक एडल्ट ह्यूमन बींग्स में कन्वर्ट होते हैं, एंड देन फाइनली दे ग्रो ओल्ड एंड डाई. तो जितने भी लिविंग क्रीचर्स होते हैं दे ग्रो. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, अपने ही तरीके के और बीइंग्स को वो इस अर्थ पे लेकर आते हैं.
प्लांट्स में अलग टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एनिमल्स अपने तरीके के बींग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन बींग्स अपने ही तरीके के बींग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग. Non-living things do not eat food, non-living things cannot breathe, non-living things cannot move on their own, non-living things do not feel, non-living things do not grow and non-living things do not reproduce. बिल्कुल जितनी चीज़ें अभी हमने जो कैरेक्टरिस्टिक आपने लिविंग थिंग्स के पढ़े, बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो जाता है नॉन लिविंग थिंग्स में. नॉन लिविंग थिंग्स को खाना नहीं चाहिए, ग्रो नहीं करते, ब्रीथ नहीं करते हैं, अपने आप मूव नहीं कर सकते एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रिप्रोड्यूस भी नहीं करते हैं. Science in context. The tallest living thing on the earth is a sequoia tree. तो सबसे ज़्यादा tallest and fastest growing tree जो earth पे present है, its name is sequoia tree. Science in context again. The largest living thing in the world is blue whale. So the largest mammal या कोई भी largest living thing जो earth पे exist करता है, it is a blue whale, an aquatic animal. Check yourself. Name any 3 living things. तो living things के बहुत सारे examples आपने अभी पढ़े हैं. Human beings, one of them. Plants, living things में आते हैं. Then comes your animals. ये तीनों आपके living things के creatures हैं. Name any 3 non-living things. Table, chair, pen, bag, plants के अलावा आपके rocks हो गए, soil हो गया, ये सारे आपके non-living things में आते हैं. Mind-boggling. Some animals reproduce by giving birth to young ones, whereas some reproduce by laying eggs. तो कुछ animals ऐसे होते हैं जैसे cat, dog, cow, ये अपने ही तरीके के babies को deliver करते हैं. They give birth to the babies. While जैसे आपका hen हो गए, birds हो गए, ये eggs को lay करते हैं, उनमें से young ones hatch out होते हैं. Glimpse of the chapter. Living things. Things that are alive. All plants, animals and humans are living things. Non-living things, things that are not alive. Basic difference है, living things जो alive होती हैं, they feel, they breathe, they grow, they move on their own. Non-living things इनमें से कुछ भी नहीं करती हैं, they are not alive. Summary. The things we see around us are either living or non-living. All plants, animals and humans are living things. Living things need food, water and air to live, can move on their own, can feel, can reproduce and grow. Non-living things cannot breathe, move, eat food, feel, grow and reproduce. So in this chapter, what did we heard, what did we see? We read about living things, non-living things, basic differences between the two. क्या होता है differences? Living things can feel, they grow, they need food to grow, they breathe and they reproduce. Totally opposite. इन पांचों में से कुछ भी non-living things नहीं करती हैं. Now let's move ahead with the exercise. Think and answer. A. Tick the correct option. Number 1. Which is a living thing? Rope non-living thing में आता है. Belt non-living thing में आता है. So snake एक living thing में है. It breathes, it grows, it dies, it requires food. तो ये आपका किस में आता है? Living thing में आता है. Similarly, you have some more questions. Answer them appropriately. B. Fill in the blanks. अब यहाँ पर आपके पास chair, food, living, move, parrot. ये आपके पास 5 अलग अलग options हैं. You have to fill in the blanks. Number 1. Dash is a living thing. इन चारों में से parrot is the only thing which is a living thing. So parrot is the correct answer for the first blank. Similarly, बाकी के चारों options भी आपको appropriately बाकी सारे blanks में fill करने हैं. C. Write the features of living things. तो 5 features आपको लिखने हैं. 1. आपका सबसे पहला क्या हो सकता है? दैट लिविंग क्रीचर्स ग्रो करते हैं, ब्रीथ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. ये सारे फीचर्स हैं. 1 बीइंग द टॉप मोस्ट की रिप्रोड्यूस करते हैं सारे लिविंग बींग्स. बाकी सारे आपको फिल आउट करने हैं. डी. सर्कल ओनली द लिविंग थिंग्स गिवन बिलो. तो आपके पास एंट है, देन यू हैव टॉर्टोइज, यू हैव बुक, काइट. इनमें से आपको जितने भी लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक जो भी पिक्चर शो करता है उसको आपको सर्कल कर देना है. नंबर 1 इज अ स्पाइडर. स्पाइडर क्या करता है? सारे लिविंग थिंग्स के आपको कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल करता है. रिप्रोड्यूस करता है, ब्रीथ करता है, खाने के लिए खाना चाहिए, ग्रो करने के लिए खाना चाहिए, पानी की जरूरत है, हर चीज की जरूरत है. हेंस इट इज अ लिविंग थिंग. E. Write names of any 4 living and non-living things that are not given in the lesson. तो लेसन से हट के आपको चीजें बतानी है. लिविंग थिंग्स में आप क्या क्या लिख सकते हो? प्लांट्स के बारे में अभी तक यहाँ पे कोई मेंशन नहीं था, हेंस प्लांट्स का आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम प्लांट आपको और भी 3 चीजें यहाँ पर मेंशन करनी है. नॉन लिविंग थिंग्स, माउंटेन्स, रॉक्स, सॉइल, ये सारी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं. सो यू कैन मेंशन देम हियर. Fun time. Draw or paste pictures of any 5 animals and their babies. तो कोई भी random 5 animals आप लीजिए, कोई भी हो सकता है ये, डॉग, कैट, जीब्रा, काउ, लायन, टाइगर. उन एनिमल्स की फोटो यहाँ पेस्ट करिए along with their babies and write the names कि उनके बेबीज को किस नाम से बुलाया जाता है.
Science club. Collect pictures of 5 living and 5 non-living things and paste them in your notebook. यहाँ पर भी आपको 5 living, 5 non-living things की pictures को collect करना है, cut it और अपनी notebook में से paste करिए. Talk about. Arrange a discussion in the class about living things versus non-living things. ग्रुप्स में डिवाइड करिए अपनी क्लास में अलग अलग स्टूडेंट्स को और दोनों ग्रुप्स एक लिविंग थिंग के बारे में एक नॉन लिविंग थिंग के बारे में यू विल हैव अ डिबेट अबाउट इट. कॉग्निटिव कॉर्नर. राइट नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट कैन मूव. सबसे पहले क्या क्या चीजें मूव कर सकती हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं कौन से हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, दे कैन मूव. कैन नॉट मूव. चेयर, टेबल, माउंटेन्स, ये सब मूव नहीं कर सकते हैं. नीड फूड, वाटर एंड एयर. ह्यूमन बींग्स को चाहिए, एनिमल्स को चाहिए. Then you have all the living things, plants को चाहिए. Do not need food, water and air. Chair, table, mountain, rocks, इन सभी को इनमें से किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है because they are non-living. Grow in size. जितने भी animals, cat, dog, human beings, plants, ये सब grow करते हैं. They require food. Do not grow in size. Chair, bed, जितना भी फर्नीचर का आइटम्स हो गए, बेड को भी आप पहले दिन लेकर आओगे, आखिरी दिन तक उसका साइज सेम ही रहता है. So they do not grow in size because they are non-living things. So students, here comes the end of this chapter. In this chapter we dealt about living things, non-living things, basics, differences between the two. Exercise के कुछ questions हमने करे हैं. Constantly उनको practice करते रहिए, memorize करते रहिए and to revise them.
students, how are you? I hope all of you are doing perfect at your places. So students, today we will be having our online sessions और online session के benefits बहुत सारे हैं. One being the prime reason, आपको घर के बाहर भी नहीं जाना और आप सारी चीज़ें अपने घर पे आराम से अपने टेबल पे बैठे हुए सब कुछ सीख सकते हो. Now before beginning the session, do you know what my name is? My name is... Right, my name is Simran. So today we will be doing something very interesting chapter of this book, and the topic of this chapter is Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is wild animals. The animals that we see in forests, you do not see them on the roads roaming around. Either you see them in the zoos behind the cages or in the forest, because these are wild animals, jungly जानवर होते हैं, and they can cause great harm to other human beings. Learning objectives of this chapter will be where do wild animals live and what do wild animals eat. Get going. We live in the forest, write our names. Alice followed me down the hole to Wonderland, and I am a rabbit. I tried to scare little Red Riding Hood. I am a wolf. Goldilocks came to our house, and we are the three bears. तो ये तीन अलग-अलग fictional stories हैं. You can read them anywhere. These are very interesting books. इस पे movies भी बन चुके हैं. You can watch them as well. So these are three different wild animals: rabbit, wolf, and then the bears. ये सारे wild animals हैं. They live in the forest. तीनों interesting stories हैं. You can either read them or you can watch the movies made on them. They're very interesting, and you will definitely learn something from these stories. Reading time. You know that domestic animals live in or near our houses. There are some animals that live in the jungle. They are called the wild animals. So आपको बहुत सारे जानवर अपने आसपास दिखेंगे. Either they are the pet or the domestic animals. जैसे आपका cat हो गया, dog हो गया, cow हो गया. But there are some animals जो आपको ऐसे road पे roam करते हुए नहीं दिखेंगे. Tiger आपको नहीं दिखेगा, lion आपको नहीं दिखेगा, elephant आपको ज़्यादातर नहीं दिखाई देते हैं. These animals are the wild animals, and these animals live in forests. जंगल में ही रहते हैं. We can see wild animals in a zoo also. Some wild animals are big and some are small. अब या तो ये आपको forest में दिखाई देंगे, jungles में, either ये आपको ये दूसरी जगह दिखाई देंगे zoo में. Zoo में ये cages में होते हैं, appropriate distance होता है, तो ये safe रहते हैं. Where do wild animals live? ये रहते कहाँ हैं? Monkeys, chimpanzees and gorillas live both on trees and on the ground. Elephants, zebras and deer live under trees. Lions, bears and tigers live in caves or dens. Birds make nests on their own. Rats, mongooses, snakes and rabbits live in holes or burrows in the ground. Spiders make webs to catch insects. Termites and ants build moles and anthills with mud. अब आपके अलग-अलग wild animals हैं. For example, monkeys, chimpanzees. ये सारे कहाँ रहते हैं? They live on the trees या ये land पे भी रहते हैं. Then you have different set of animals. For example, elephants, zebra, कैमल, ये सारे कहाँ रहते हैं? ये ट्री के अंडर में रहते हैं ताकि शेड इनको मिलता रहे. देन यू हैव स्नेक्स, रैबिट्स, ये सब कहाँ पे रहते हैं? दे आइदर लिव इन द होल्स और दे बरो, जो आपके सैंड के अंदर या लैंड के अंदर की तरफ जो आपके छेद बन जाते हैं वहाँ पर ये रहते हैं. देन वी हैव स्पाइडर्स, ये वेब बनाते हैं, वेब में ही अपना खाना भी ये इंसेक्ट्स वगैरह को ट्रैप करते हैं सो दैट दे कैन ईट. सो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड द प्लेसेस दे लिव इन आर ऑल्सो different. Science and context. Giraffe is the tallest animal on the earth. तो tallest animal जो earth पे है, we call it giraffe. Now let's see what do animals or wild animals eat. Wild animals eat different kinds of food. अब जहाँ ये घरों में रहते हैं, उन घरों का नाम भी अलग है, अलग-अलग जगहों पे रहते हैं. So natural सी बात है, जो खाना भी ये खाते होंगे, it is different. Some animals eat grass, leaves and green plants. They are called herbivores. सबसे पहले कैटेगरी आ गई है हर्बीवोर्स की. हर्बीवोर्स आपके वो एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल काउ, बफेलो, डियर, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं एंड वी कॉल सच एनिमल्स हर्बीवोर्स. Some animals kill other animals and eat their flesh. They are called carnivores. Second category of food eating habits पे जो आते हैं वो होते हैं carnivores. ये plants तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, ये दूसरे animals का flesh consume करते हैं, like tiger, lion, leopard, wolf. ये सारे क्या करते हैं? दूसरे animals का flesh consume करते हैं.
साइंस इन कॉन्टेक्स्ट, टाइगर्स हैव स्ट्राइप्ड स्किन नॉट जस्ट स्ट्राइप्ड फर। तो टाइगर्स के ऊपर आपको स्ट्राइप्ड स्किन दिखाई देती है, सिर्फ उनका फर ही स्ट्राइप नहीं होता है, उनकी जो पूरी स्किन होती है वो एक्चुअल में स्ट्राइप्ड ही होती है। नाउ वी हैव थर्ड कैटेगरी, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स एंड दे आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स हो गया, कार्निवोर्स हो गया, ओमनीवोर्स दोनों का मिक्सचर होता है। ऐसे जो एनिमल्स होते हैं फ्लैश भी कंज्यूम करते हैं एंड दे कंज्यूम प्लांट्स ऑल्सो। Fourth category, some animals eat the flesh of dead animals. These animals help to keep the jungle clean. They are called scavengers. अब चौथी कैटेगरी जो है ये फ्लैश खाती है बट डेड एनिमल्स के, फॉर एग्जाम्पल क्रो, वल्चर्स, ये डेड एनिमल्स जो होते हैं उनके फ्लैश को कंज्यूम करती हैं एंड दीज सेट ऑफ एनिमल्स आर नोन एज स्कैवेंजर्स। Glimpse of chapter, wild animals, the animals that live in forest, cave, a big hole in a rock, burrow, a wide hole in the ground. अब आपके wild animals जो forest में रहते हैं, then you have cave, rock में एक बड़ा होल होता है, यहाँ पर आपके अलग अलग animals रहते हैं, then you have burrows, एक बहुत बड़ा होल होता है but it is in the ground. Summary, wild animals live in the jungle, some wild animals live on or under trees, some wild animals live in holes in the ground, some wild animals eat plants, some eat the flesh of other animals. तो wild animals जंगल में रहते हैं। On the basis of the eating habit of these animals, चार कैटेगरीज होती हैं, हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, देन वी हैव ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स का मिक्सचर जो प्लांट्स भी खाते हैं, फ्लैश भी कंज्यूम करते हैं, लास्टली द स्कैवेंजर्स जो डेड एनिमल्स का फ्लैश कंज्यूम करते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द एक्सरसाइज, थिंक एंड आंसर। A, tick the correct answer. Number 1, which animal makes a web? जाल कौन सा एनिमल बनाता है? It is the spider. Rest of the questions अच्छे से पढ़िए and answer appropriately. B, write H for herbivores and C for carnivores. अब यहाँ पर आपके पास अलग अलग एनिमल्स के नाम हैं। जो प्लांट्स खाते हैं herbivores होंगे, उनके आगे H लिखेंगे। जो प्लांट्स नहीं खाते, सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? फ्लैश, वो carnivores होंगे, उनके आगे आपको C लिख देना है। काऊ, काऊ क्या खाती है? काऊ सिर्फ प्लांट्स ही खाती है, तो काऊ के आगे क्या आ जाएगा? एच। अब ऐसा ही एक एनिमल है जहां पे टाइगर, टाइगर क्या है? आपका सिर्फ फ्लैश कंज्यूम करता है, तो टाइगर के आगे आप सी लिख देंगे। बाकी सारे एनिमल्स के आगे भी आपको अप्रोप्रिएटली एच या फिर सी लिखना है, डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट। सी, क्रॉस द ऑड वन फ्रॉम ईच ग्रुप। अब यहाँ पे आपके पास एक साइड डोमेस्टिक एनिमल्स है, एक साइड वाइल्ड एनिमल्स है। जो आपके डोमेस्टिक एनिमल्स वाली लिस्ट में जो एक्चुअल में डोमेस्टिक नहीं है वो आपको क्रॉस कर देना है, और वाइल्ड एनिमल्स में जो वाइल्ड नहीं है वो आपको क्रॉस कर देना है। तो पहले में जीब्रा है, पहला है डोमेस्टिक एनिमल्स का, सबसे पहला ही जीब्रा। इट इज नॉट अ डोमेस्टिक एनिमल। रेस्ट, काउ, शीप, गोट, हॉर्स, डॉग, ये सारे आपके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं जिनको डोमेस्टिकेट करा जाता है। सो जीब्रा को आप क्रॉस कर देंगे। Then we have wild animals. Deer wild animal है, tiger is a wild animal, snake is a wild animal, rhino is a wild animal, bear is a wild animal, but buffalo ये एक domestic animal में आता है, it is not a wild animal, तो उसको आप क्रॉस कर देंगे। D, answer the following questions. Number 1, how do scavengers help us? Scavengers हमारी मदद कैसे करते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था scavengers dead animals का flesh consume करते हैं, so how do they help us? ये environment को clean करने में help करते हैं। डेड एनिमल्स की बॉडी अगर ऐसी ही पड़ी रहेगी, स्कैवेंजर्स इन्हें नहीं खाएंगे, तो बहुत बैक्टीरियाज, बहुत ज़्यादा डिजीजेस फैलने के चांसेस रहते हैं। सो इन दिस वे स्कैवेंजर्स हेल्प अस। सिमिलरली देयर आर 2 more questions and you have to answer them. E, which wild animal on the land has the biggest mouth? To get the answer, cross 7 all the X, Y and Z. तो यहाँ पर आप जितने भी X, Y, Z हैं उनको जैसे ही आप क्रॉस कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा कि ऐसा कौन सा एनिमल है जिसका सबसे बड़ा माउथ है। एंड विच एनिमल इज दिस? इट इज हिप्पोपोटामस। जितने भी एक्स वाई जीज को आप हटा दोगे तो आपके पास एंड में हिप्पोपोटामस बच जाएगा। इट हैज द बिगेस्ट माउथ ऑन लैंड। साइंस क्लब, विजिट अ जू अलॉन्ग विद योर टीचर, ऑब्जर्व वेयर एनिमल्स लिव देयर एंड व्हाट दे ईट। तो अपनी टीचर्स के साथ प्लान करिए, जू में विजिट करिए, देखिए वो कहाँ पर रहते हैं, कौन से एनिमल्स, एंड वो खाते क्या हैं। नंबर 1, विच इज द बिगेस्ट वाइल्ड एनिमल ऑन द लैंड? तो लैंड पे सबसे बड़ा जो वाइल्डेस्ट एनिमल है वो कौन सा है? इट इज द लायन। बहुत ही बड़ा है एंड इट इज द वाइल्डेस्ट एनिमल ऑन लैंड। सिमिलरली यू हैव 1 more question, आंसर देम।
talk about, we should protect the wild animals, discuss in the class. तो हमें wild animals को protect करना चाहिए. They are getting endangered, खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे. क्यों उनको protect करना चाहिए, क्यों वो endangered होते जा रहे हैं, कैसे हम उनको protect कर सकते हैं, अपनी क्लास में से discuss करिए. Cognitive corner. Today, the Asiatic lion in India is found only in the Gir forests of Gujarat. This is its natural home and where it gets food to eat and space to live. There are very few lions left on the earth now. What should we do to save wild animals? अब एशियाटिक लायन जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात के गिर फॉरेस्ट में ही देखे जाते हैं. पहले बहुत जगह देखे जाते थे बट अब यहीं पर हैं, वहीं पर रहते हैं. अब आपको ये रीजन बताना है कि इन सारे वाइल्ड एनिमल्स को हमें सेव करने की जरूरत क्यों है. वन रीजन बीइंग कि ये आपकी कंट्री को भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल इकोसिस्टम का पार्ट है, इसीलिए हमें इन्हें बचाना ही चाहिए. ऐसे ही और रीजंस आप ढूंढिए और बताइए. Life skills. Why should we plant more trees and protect the forests around us? Complete the following sentences. Forest is home for various wild animals. तो forest बहुत सारे अलग अलग जंगली जानवरों का घर है. It is the home for various wild animals. Hence, फॉरेस्ट को बचाना भी जरूरी है. पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाने की जरूरत है ताकि इतने सारे जानवर अपना घर ना खोएं. Similarly, you have 2 more questions and you have to answer them. Students, with this we come to the end of this chapter. In this chapter, we read about the wild animals. क्या वो खाते हैं, कहाँ रहते हैं, धीरे धीरे किस तरीके से खत्म होते जा रहे हैं. उनकी ईटिंग हैबिट के बेसिस पे 4 टाइप के आपने एनिमल्स देखे, herbivores, carnivores, omnivores and scavengers. We did some exercises. Practice करिए उनको, do revise them and do memorize them.